Hello YouTube, welcome to my channel that is As with Said. So in this video we are going to discuss about refraction by spherical lens. Since we have already completed that is reflection by spherical mirror, if you want to watch it then you can just go to my channel and in the playlist you can figure it out. All kind of videos are there. Clear? I mean particularly for this chapter since we are continuing from the beginning. I hope you are going to understand what we are going to discuss. Okay, so without wasting any time, let's start it. I'm trying to cover it within 12 to 15 minutes. Okay, hardly. तो चलो शुरू करते हैं. Refraction by spherical lens. First of all, spherical lens. There are two types of lenses. One is your convex. One is your concave. If you don't know or how to know that which one is your convex, which one is your concave, just check it out, the middle portion. If the middle portion is the thicker one, okay, then this is said to be convex lens. If the middle portion is the thinner one, then that is said to be concave lens. So this is your convex, this is your concave. Okay, so now, so convex lens has 6 conditions or 6 cases. As like concave mirror. ओके, आप ट्रिक के हिसाब से भी याद कर सकते हो. जैसे हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर में कैसे 6 केसेस होते हैं, लाइक दैट ओनली कॉन्वेक्स लेंस आल्सो हैविंग 6 केसेस. सिमिलरली convex mirror having 2 cases. So now in lens part, concave lens will be having 2 cases. Okay, but to obtain any kind of image, again we used to remember some kind of rules. Okay, so the first rule says that rule number 1, if you are passing any ray of light that is parallel to principal axis, then it will pass through focus. Okay, second one, pass through focus, then it will parallel to principal axis. And the third one, most important one, if you want to pass through optical center, then it is going to be undeviated. मतलब that means it will go through a straight line. Okay, एक सीधे लाइन में वो पास हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. Okay, let me show you, you can easily understand. Okay, fine. So this is your convex lens. Okay, and this is your optical center. This is your focus 1, this is your twice of focus 1, and this is your focus 2, this is your twice of focus 2. एकदम सही है भाई, कोई बात नहीं. जो हमने पढ़ा था वो कॉनकेव मिरर में, जैसे कि यहाँ पर फोकस होता था, यहाँ पर क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक वैसे ही सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर के प्लेस में क्या है हमारा, 2 टाइम्स ऑफ फोकस 1 और कुछ नहीं. वैसे भी हमारा ये लेंस है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोकस है राइट साइड भी एक्टिव होगा. क्लियर, जो कि डबल ऑफ फोकस 2 है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो कौन सा फोकस एक्टिव होगा पता है आपको, फोकस 2. याद करो. ओके, कौन सा फोकस एक्टिव होगा हमारा, फोकस 2. ताकि अगर मैं कोई भी रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस छोड़ रहा हूं तो वो पास होगा फोकस के थ्रू, लेकिन किस फोकस के थ्रू, फोकस 2 के थ्रू. ओके, चलो, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, ट्वाइस ऑफ फोकस 1, फोकस 2, ट्वाइस ऑफ फोकस 2. okay, I am trying to parallel the ray through the principal axis, then it will pass through which focus, focus 2. so this is my focus 2. clear, इस साइड से भी एक ले लो, ये भी चला जाएगा, pass through focus 2. so first rule is satisfied, parallel to principal axis, pass through the focus. second rule एकदम उल्टा है भाई, और कुछ नहीं. optical center, focus 1, twice of focus 1, focus 2,
ट्वाइस ऑफ फोकस टू। अगर कोई भी रे को आप छोड़ रहे हो किसके थ्रू, फोकस के थ्रू, यहां पर किस फोकस के थ्रू हम छोड़ेंगे, फोकस वन के थ्रू, जो कि हमारा लेफ्ट साइड में है। क्लियर, देन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ओके, एरो मार्क, देन इट विल गोस थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर भी एक छोड़ो। ओके, रिफ्रैक्शन मीन्स ओनली द रे विल पासेस टू अनदर मीडियम, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो बाउंस बैक हो जाएगा, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो वो उधर आर पार हो जाएगा। क्लियर, दैट मीन्स इट विल पास थ्रू अनदर मीडियम। क्लियर, so here first ray or first rule we can say parallel to principal axis pass through focus. This time which focus active, focus 2. If you want to pass through focus, that means the focus 1 will be the active one, that means through this focus only you are going to pass. Clear, then it will pass again or parallel to principal axis. And third one, optical center, focus 1 twice of focus 1, f2 twice of focus 2. If I are going to pass through the optical center only like this, there will be no refraction. I mean, it is going to be seen that simply it is going to be passed the way it is going to be coming out. Clear, that means that's why we have written undeviated. कोई भी path deviation नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक straight line के थ्रू चला जा रहा है। Clear, okay. Okay, now for concave lens also, if you are taking concave lens, this is your optical center, focus 1 twice of focus 1, focus 2 twice of focus 2. First ray, that is parallel to principal axis, pass through focus, parallel to principal axis. Now this time for concave lens, note it down, focus 1 is the active one, focus 1 is the active focus. अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात कर रहा हूं तो हमारा फोकस 1 होगा जो, वो एक्टिव फोकस होगा। मतलब यहाँ पर जो लेंस है वो कन्वर्जिंग नहीं, वो डाइवर्जिंग नेचर, जो रे इधर आ रहा था वो इधर कन्वर्ज नहीं हो रहा, तो सिंपली डाइवर्स हो जाएगा। क्लियर, विथ रेस्पेक्ट टू फोकस 1, लाइक दैट ऑल्सो इफ यू टेक फ्रॉम बिलो देन इट विल ऑल्सो डाइवर्स फ्रॉम हुज रेस्पेक्ट, फोकस 1 रेस्पेक्ट। क्लियर, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं यहां पर, तो लाइट रेस क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहे हैं, इसीलिए उसको हम क्या लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस। यहां पर कॉन्केव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर, सिर्फ दो चीजें आपको याद रखना है, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो हमारा राइट साइड फोकस एक्टिव होगा, अगर कॉन्केव लेंस की बात हो रही है तो हमारा लेफ्ट साइड दैट इज फोकस 1 विल द एक्टिव फोकस। क्लियर, बाकी के रूल भी अप्लाई कर लो। 0 0 मीन्स फोकस, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, focus 1 twice of focus 1, focus 2 twice of focus 2. Now second rule, what did it say, pass through the focus, which side focus, again focus 1, and for the second rule left side focus is the active one, through this focus only you are going to apply for both convex and concave. Okay, let's pass. Okay, got it, understood? So like that it will parallel to principal axis. And third rule, that is obviously pass through the optical center, it is going to be undeviated. I hope this is clear, understood? One more time, quick recap, parallel to principal axis, pass through the focus, pass through the focus parallel to principal axis, and pass through the optical center, it is going to be undeviated. I hope this is clear, understood? Now we are going to discuss about the 6 cases of convex lens. Very easy, remember that. Convex lens, how many cases we are going to discuss,
6 cases. Remember that. First case, case number 1. What does it say? Object must be at infinity. Okay. So where will the object right now? Infinity. If you are going to keep the object is at infinity, what will be the image size? Where is going to be produced? वगैरह वगैरह. Okay. Okay. So where is the object right now? Infinite. So let's apply the rules. So what are the rules? Remember, parallel to principal axis, pass through focus. Pass through focus, parallel to principal axis. Pass through optical center, it is going to be on divided. Out of these 3 rules, let's take on any 2 rules. 2 rules only. Okay. So let's I am taking parallel to principal axis. So for convex lens, क्या बोल सकते हो कौन सा फोकस एक्टिव होगा? फोकस 2 हमारा, मतलब वो कन्वर्ज हो जाएगा फोकस 2 में. और एक रे इधर से छोड़ लो, ये भी फोकस 2 के पास हो जाएगा. क्लियर? ताकि हमें क्या पता चला, जो इमेज फॉर्मेशन हुआ कहां पर हुआ? जो इमेज फॉर्मेशन हुआ फोकस 2 में हुआ. देखने में क्या दिखता है? पॉइंट साइज्ड, मतलब हाईली डिमिनिस्ड. ओके. और बाकी तो लेंस है ताकि हमारे लिए रियल इमेज होगा. रियल है तो इन्वर्टेड, ये तो फ्री में मिल रहा है हमें भाई. ओके. ये हमारा केस 1. इसको उल्टा कर लो, केस 2. ऑब्जेक्ट अब कहां पर रखेंगे हम? फोकस में. फोकस मतलब किस फोकस में? हमारा फोकस 1 में रखेंगे. क्लियर? ये वाला ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड मान लो. ओके. ये ले लो आप कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 1, ये ट्वाइस ऑफ फोकस 1, ये फोकस 2, ये ट्वाइस ऑफ फोकस 2. ऑब्जेक्ट अभी कहां पर है? फोकस 1 पे. चलो भाई ठीक है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा फोकस देके जाएगा? फोकस 2 देके जाएगा. अभी दूसरा रूल कौन सा अप्लाई करेंगे? आइदर पास थ्रू फोकस. अभी फिलहाल तो ऑब्जेक्ट फोकस पे भी है, तो सिर्फ लास्ट रूल बचा है हमारे पास, क्या? पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ओके. यहां पर छोड़ दो. ओके. तो हमें क्या पता चला यहां पे? जो इमेज होगा वो हमें इन्फिनिट में मिलेगा. जो इमेज है बहुत दूर मिलेगा, ताकि इन्फिनिट हमें उसको कंसिडर करना होगा कि वो इन्फिनिट में मिला होगा. और हाईली एनलार्ज्ड होगा क्योंकि बहुत बड़ा होगा. हाईली एनलार्ज्ड. बाकी रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर? नाउ केस नंबर 3. अभी हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे पता है आपको? ये मान लो लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, ट्वाइस ऑफ फोकस 1, ये फोकस 2, ये ट्वाइस ऑफ फोकस 2. क्लियर? अभी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बियॉन्ड 2f1, जो कि हमारा केस था कॉनकेव मिरर में. याद है आपको? बियॉन्ड सी. ठीक वैसे ही बियॉन्ड 2f1. ओके. मान लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां पर जाएगा? फोकस 2 को देके चला जाएगा भाई. क्लियर? और दूसरा हम फोकस 1 के थ्रू छोड़ देते, कोई बात नहीं. ओके. ये हमारा चला जाएगा इसके थ्रू. क्लियर? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यहां पर जो कनेक्शन पॉइंट हमें मिला वो किसके बीच में मिला? फोकस 2 और ट्वाइस ऑफ फोकस 2, इन दोनों के बीच में मिला ये वाला पॉइंट. क्लियर? तो जो ऑब्जेक्ट हमारा था बियॉन्ड सी, सॉरी बियॉन्ड 2f1, तो इमेज हमें कहा मिला? बिटवीन f2 एंड ट्वाइस ऑफ f2. क्लियर? देखने में थोड़ा सा छोटा दिखता है तो डिमिनिस्ड. बाकी रियल एंड इन्वर्टेड. ओके. चलो नेक्स्ट पॉइंट, that is our case number 4. Okay. So case number 4 is the exact opposite of case number 3. So this time you have to keep the object between twice of focus 1 and f1. जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था? 2f1 के पहले रख लिया था बियॉन्ड 2f1. तो इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ? f2 एंड 2f2 के बीच में.
अभी 2f1 और f1 के बीच में रख लेंगे, इमेज कहाँ पे आएगा, 2f2 के बाद में आएगा। क्लियर? चलो भाई, ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर f1 ट्वाइस ऑफ f1, ये f2 ट्वाइस ऑफ f2। क्लियर? अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहाँ पे 2f1 और f1 के बीच में, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान लो आपका फोकस। क्लियर? ओके, यहाँ पर और एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आप लोग छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई भी रूल आप लगा सकते हैं। ओके, थोड़ा स्केल में तो सीधा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो कनेक्शन पॉइंट मिला हमें 2f2 के बाद में मिला, तो इमेज जो हमें मिला कहाँ पर मिला, बियॉन्ड 2f2। क्लियर? तो बाकी साइज में एनलार्ज्ड है, अगर एनलार्ज होता था ऑब्जेक्ट तो डिमिनिश था ना, अभी फिलहाल डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा है, तो इमेज एनलार्ज्ड होगा, बाकी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट केस, that is case number 5. Object at 2f1, याद करो ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज मिलता था, ठीक वैसे ही ऑब्जेक्ट को अगर हम 2f1 में रखेंगे तो 2f2 में मिलेगा हमको, क्योंकि ये लेंस है। क्लियर? ओ f1 2f1, दिस साइड f2 2f2। तो ऑब्जेक्ट अभी कहां पर है, 2f1 में, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस। लगा लो भाई, पास थ्रू फोकस, ये फोकस में छोड़ दो आप। क्लियर? ये चला जाएगा कहां पर, ऐसे पैरेलल होके प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमें मिल गया कहां पर, 2f2 पे जो इमेज, तो इमेज हमें मिल गया 2f2 पे, बाकी 2f1 में है, 2f2 में मिल गया, तो साइज तो सेम ही होंगे, सेम साइज। क्लियर? बाकी की चीज रियल और इन्वर्टेड। ओके, रियल और इन्वर्टेड। Now 5 cases, let's quickly recap. Okay, first one, object is at infinity, तो इमेज हमें कहां पर मिला, फोकस 2 में, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट को हम रखा अभी फोकस 1 पे, तो इमेज मिला हमें इन्फिनिटी पे, बाकी हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अभी कहां पर है, बियॉन्ड 2f1 में, तो इमेज कहां पर फॉर्मेशन हुआ, बिटवीन f2 एंड 2f2 में, बाकी साइज डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड। नेचर, ऑब्जेक्ट अभी कहां पर है भाई, बिटवीन 2f1 एंड f1, तो इमेज कहां पर फॉर्मेशन हुआ, बियॉन्ड 2f2 पे, एनलार्ज्ड, रियल, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अभी कहां पर है, ट्वाइस ऑफ फोकस 1 पे, इमेज कहां पर फॉर्मेशन होगा, 2f2 पे, बाकी साइज होगा सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड टू बी ऑनेस्टली डियर स्टूडेंट, ये जो ऑर्डर में हमने लिखा, ओके, ये एग्जैक्ट ऑर्डर में नहीं होगा आपके बुक में, आपको याद करने के लिए जो ट्रिक में लिखा ये ऑर्डर है। क्लियर? लेकिन एक जो आपके बुक में है वो पहले होगा इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड 2f1, देन 2f1, देन 2f1 एंड f1, देन f1। क्लियर? तो अभी जो हम पढ़ेंगे ये हमारा स्पेशल केस होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट केस एंड इट इज हाईली एसेंशियल टू बी ऑनेस्ट। केस नंबर 6। क्लियर? तो केस नंबर 6 क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस 1 के बीच में रखते हो, तो मान लो यहां पर मैंने, क्लियर? क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है अभी, फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, राइट? तो यहां से अगर मैं रेड पास करूं, क्लियर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पर तो फोकस 2 होगा, ट्वाइस ऑफ फोकस 2, यहां पर ट्वाइस ऑफ फोकस 1। कॉन्वेक्स लेंस के रूल के हिसाब से ये फोकस 2 के थ्रू जाएगा, मतलब यहां से। क्लियर? दूसरा रूल बचा क्या हमारा, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? यहां से छोड़ दो। क्लियर? अगर मैं पीछे की तरफ ले लूं, ये वाला देखो, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये जो इमेज है ये अपेरेंट इमेज है, मतलब वर्चुअल है,
उसके साथ इरेक्ट भी है, और जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो सेम साइड ऑफ द लेंस। ओके, फिर से समझिए, अगर ऑब्जेक्ट फोकस वन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है कॉन्वेक्स लेंस के, तो जो कुछ भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो सेम साइड ऑफ द लेंस होगा, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये दोनों कभी मिलेंगे हमें पता नहीं, ऐसा हमें लगना पड़ेगा कि वो पहले से मिल चुके हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द अपेरेंट इमेज। ओके, ये वाला। सो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ टू केसेस ऑफ concave lenses. Okay, so concave lens only have two cases. Case number one, that is if object is at infinity, तो मान लो ये आपका कॉन्केव लेंस है, क्लियर, जो कि हमारा डाइवर्जिंग नेचर है। बाकी ऑप्टिकल सेंटर फोकस वन, ट्वाइस ऑफ फोकस वन, फोकस टू, ये ट्वाइस ऑफ फोकस टू। ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से मान लो कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ओके, तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस वन के थ्रू डाइवर्ज हो जाएगा, डॉट 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 डाइवर्ज, डॉट 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 डाइवर्ज। तो हमने क्या समझा, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कॉन्केव लेंस के, तो इमेज फॉर्मेशन जो होगा हमारा वो फोकस वन पे होगा, साइज हमारा हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि सेम साइड ऑफ द लेंस है। केस नंबर टू, ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, कोई भी पॉइंट हो। ओके, कोई भी पॉइंट मान लो, लेकिन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होगा। ये आपका कॉन्केव लेंस। ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर फोकस वन, ट्वाइस ऑफ फोकस वन, ये फोकस टू, ट्वाइस ऑफ फोकस टू। तो मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फिक्स कर लिया, क्लियर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किसके थ्रू जाएगा, फोकस वन के थ्रू डाइवर्ज हो जाएगा, डॉट 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 डाइवर्ज। रिमेंबर द थर्ड रूल, पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, लेट अस पास थ्रू इट। ओके, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, ये वाला छोटा सा इमेज आप देख सकते हो, वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस वन के बीच में हो गया। तो इमेज फॉर्मेशन जो हो गया कहाँ पे, फोकस वन एंड ऑप्टिकल सेंटर, साइज डिमिनिश्ड, और नेचर हमारा वर्चुअल इरेक्ट। तो ये था आपके लेंस के 8 इमेज केसेस, क्लियर। Convex, we have already discussed 6 cases. For concave lens, only we have 2 cases. Clear? In both the cases of concave lens, the nature is virtual, erect, virtual and erect. एक केस में इमेज का साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, दूसरा केस में हमारा इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी पॉइंट लो, या फिर आप 2f1 पे रख लो या फिर f1 पे रख लो, कहीं भी ये एक नोन डिस्टेंस होगा जो कि हमारा फाइनाइट डिस्टेंस होगा, ऐसा आप याद रख सकते हैं, क्लियर, फाइनाइट डिस्टेंस। ओके ना, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। होप यू लाइक इट। ओके, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया, मैंने बोला था आपको 12 to 15 मिनट के बीच में हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा 2x स्पीड में देख लेना। ओके, चलो, थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।